شکر للہ والحمد للہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت ذکر. چند اشعار ایک کلام کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اشعار از دا پلورل آف شعر، اور شعر کہتے ہیں ورس کو اردو میں. سو شعر از سنگولر، اشعار از plural. Verse and verses. So there's a beautiful kalam by Allama Sahib. The title is Nazrana-e Aqidat. To give mehmani of our, like, respect and mehmani to our Imam. When Imam was visiting actually in northern areas of Pakistan in February 1976, he wrote this kalam. And there are few verses which are so beautiful, and they are in Urdu, and sometimes I wonder how many of you already truly understand Urdu. So I will try to do it in mixed language. And he's welcoming Hazrima. Ay mazhare noore khuda, ehlan wa sahlan marhaba. Oh, the manifestation of the light of Lord, welcome. Eale Paak Mustafa, Ahlan wa Sahlan Marhaba. Oh, the progeny of the Prophet, welcome. Deedar-e Aqdas ke liye hum der se the tashna lab. For your holy Deedar, we were waiting for a long time. And the word tashna lab, it's like when you are so thirsty, your lips are so dry, and you are just wanting, desperate for water. That's the allegory used, that's how we were desperate, waiting for your holy Didar. Eh chashmae aabe baqa, ahlan wa sahlan marhaba. Chashma is like stream of water, and baqa is ever-living life. So allegorically is saying that Mawla, you are that stream of water which gives the ever-living life. Welcome. Jab yaare jani aa gaye, hui jane hui farsh rah. When my beloved, my life, my love of my life came, jane, all the lives or the souls of the people, they were like spreading themselves on the floor. The way we would have, like, a beautiful carpet, on the floor, so Mawla can walk. But look at the expression, the beauty of it, that all of us, the lives, the souls, we were like on the floor. Why? My beloved, my lover has come. Nikli dilon se ye sada, ehlan wa sahlan marhaba. From the depth of our heart came this welcoming. Oh Mawla, welcome, welcome, welcome. So I'm choosing specific verses. Umeed ke gunche khile, arman ke moti mile. Umeed, the desire, the flowers of the desires were blooming. Arman ke moti, arman is again desire, my hopes. The pearls of the arman, like desires, the pearls of my desire, I got those. Ehsan hai ye aapka, ahlan wa sahlan marhaba. It only happened because it is you who are so much giving, bestowing mercy. It's all due to you. Welcome, welcome. Masroor o nazan ho gaye, shadan wa khandan ho gaye. Masroor, like you are mast, and you're so proud because you're seeing your beloved. Shadan wa khandan, you're happy, you're very happy. Ye aapke ahle wafa, all those who are truly loyal to you, Mawla, welcome, welcome.
جب آپ گویا ہو گئے موتی بکھر جانے لگے. When my Maula spoke, when he spoke, it was as if the pearls were coming out. There were pearls everywhere. اے گنج اسرار خدا اہلاً و سہلاً مرحبا. Ganj means treasure, khazana. Asrar again is a plural word of sir. Sir means secret. Asrar is secrets. So Imam, who is the treasure of the secrets of Lord, welcome. یہ کیا کرشمہ ہو گیا مٹی سے سونا بن گیا. What a miracle happened. What a miracle happened. It was all dust here and it has all become gold. So what is implying that what a miracle happened that I was a dust became gold. Why? Having the didar of my beloved. یہ کیمیائے عشق تھا اہلاً و سہلاً مرحبا. So this miracle, how did that happen? So he's talking about that it was a chemical of ishq, the chemistry, the dose which I drank was made from the chemicals of love. And that's why, this dust became into gold. ایک دل نیا سا مل گیا ایک جان نئی سی آ گئی. I got a new heart and I got a new life. اب ہم میں اے نور خدا اہلاً و سہلاً مرحبا. Now, oh, the light of Lord in us, we got a new heart and new life. یہ دل ہے یا گلشن ہے یہ اتنی خوشی ایسی خوشی اے جان روحی فدا اہلاً و سہلاً مرحبا. Is it my heart? Is this a garden? Why am I so happy? Oh, life of my life, my soul be sacrificed to you. Ahlan wa sahlan marhaba. It's a beautiful kalam. I'm going to sing few verses to seek Maula's madad. Ali Allah, madad farma Maula, let us glorify you, praise you Maula. See your beauty in our heart Maula. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. اے مظہر نور خدا اہلاً و سہلاً مرحبا. اے آل پاک مصطفیٰ اہلاً و سہلاً مرحبا. دیدار اقدس کے لیے ہم دیر سے تھے تشنہ لب. اے چشمہ آب بقا اہلاً و سہلاً مرحبا. جب یار جانی آ گئے جانے ہوئی سب فرش راہ. نکلی دلوں سے یہ صدا اہلاً و سہلاً مرحبا. امید کے غنچے کھلے ارمان کے موتی ملے. احسان ہے یہ آپ کا اہلاً و سہلاً مرحبا. مسرور نازان ہو گئے شادان و خندان ہو گئے. یہ آپ کے اہل وفا اہلاً و سہلاً مرحبا. جب آپ گویا ہو گئے موتی بکھر جانے لگے. اے گنج اسرار خدا اہلاً و سہلاً مرحبا. یہ کیا کرشمہ ہو گیا
मट्टी से सोना बन गया, ये कीमियाए इश्क था, अहलन व सहलन मरहबा। ये क्या करिश्मा हो गया, मिट्टी से सोना बन गया, ये कीमियाए इश्क था, अहलन व सहलन मरहबा। एक दिल नया सा मिल गया, एक जान नई सी आ गई, अब हम में नूरे खुदा, अहलन व सहलन मरहबा। ये दिल है या गुलशन है ये, इतनी खुशी ऐसी खुशी, ऐ जाने जान रूही फिदा, अहलन व सहलन मरहबा। मेरी खुशी का ये समा, बेदार हूँ या ख्वाब में, या ये कि मैं बेखुद हुआ, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। Ya Mola, we welcome you in our heart, Mola. May our souls be sacrificed to you, Mola. Ya Mola, we are like dust, Mola. If we have your Nur Nazar, Mola, we will also become like gold, Mola. Ya Mola Meherban, Ya Mola Meherban, एक नूर नजर इधर भी हो मौला, हम गरीबों पर भी तेरी नूर की रहमत हो मौला। या मौला मदद फरमा, मदद फरमा। या मौला हम तमाम साथी यहाँ जमा हुए हैं मौला, कुछ तेरा नाम लेने, कुछ तेरी तारीफ करने मौला, तेरे इल्म से मदद लेने के लिए मौला, तौफीक, ताईद, हिम्मत और यारी देना मौला। या मौला मेहरबान, मुश्किल कुशा, मदद फरमा, मदद फरमा, मदद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दोबारा यहाँ जमा हुए हैं मौला के फरमान को डिस्कस करने के लिए, और हम उसूल दीन के फरमान जो कि मौला ने सितंबर 29, 1899 को फरमाया, हम ये डिस्कस कर रहे थे। आज हम आगे चलेंगे। मौला फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मौलाना रूमी कह गए हैं कि मैं पत्थर था, उसमें से दरख्त में पैदा हुआ, उसमें से तब्दील होकर चूंटी में पैदा हुआ, उसके बाद हैवान में पहुंचा, हैवान में से बंदर में पहुंचा, इसमें से इंसान बना हूं, इंसान में से क्या बनूंगा, मलाइक बनूंगा, वहां से कहां जाऊंगा, उससे भी ऊपर जाऊंगा। यहाँ पे ये फरमान जो मौला ने फरमाया और मौलाना रूमी की बात की, जब जमात इस फरमान को पढ़ती है तो जमात के अंदर अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। एक अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि शायद जो है वो ये रीइंकारनेशन की बात हो रही है कि भाई हम पत्थर थे पहले, फिर जो है दरख्त में पैदा हुए, और फिर जो है वो चूंटी में यानी कि कीड़ी में, इसके बाद बंदर, और इसके बाद इंसान बने हैं। तो ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। इट इज इनकरेक्ट, इट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। एज स्माइलीज हम रीइंकारनेशन पे बिलीव नहीं करते हैं। इसकी वजह ये है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो हिंदुओं से आया है, और हिंदुओं का कहना ये है कि अगर हम इस दुनिया में आते हैं, जो भी हमारा क्या कहना चाहिए, अल्लाह मदद फरमा, हिंदुओं का ये कहना है कि जो शख्स गुनाह करके मर जाता है तो उसको जो है दूसरे जन्म लेके दुनिया में आना पड़ता है।
ये जो सोच है, ये जो समझ है, ये इस्माइली तरीके की बिल्कुल खिलाफ है। हम इस्माइली ये जानते हैं कि इमाम जो है वो बादशाहों का बादशाह है, उसके पास रूहों की कोई कमी नहीं है। और जब इमाम फरमान में ये बात करते हैं कि मौलाना रूमी ने पहले मिसाल दी कि वो पत्थर था, दरख्त था, चूंटी और फिर बंदर की जो बात की है, तो यहाँ पे एवोल्यूशन की बात भी नहीं हो रही है, यहाँ पे रूह के दर्जात की बात हो रही है। हर चीज के अंदर दर्जात हैं। जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी जो हालत होती है वो मिनरल सोल की मकाम पर होती है। मिनरल सोल रूह है जमादाती। पत्थर जब एक जगह पड़ा होता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो शुरू में जो बच्चे की हालत होती है कंसेप्शन के वक्त, वो रूह है जमादाती की मिसाल पर है, मिनरल सोल की मिसाल पर है। इसके बाद जब बच्चे को खुराक मिलती है तो उसके अंदर ग्रोथ होती है, और वो जो मिसाल है वो दरख्त वेजिटेटिव सोल की मिसाल पर, रूह नबाती, रूह नबाती की मिसाल पर है कि वहां पर ग्रोथ होती है, बच्चा स्टार्ट्स टू डेवलप। और इसके बाद जो है वो चूंटी की मिसाल दी गई है। क्यों चूंटी की मिसाल दी है? कि जो मूवमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर हम कंपेयर करें, अगर एक कीड़ी चलती है उसके कंपैरिजन में हम किसी और को लगा दें, रैबिट को लगा दें, हॉर्स को लगा दें, बहुत ज्यादा फर्क है स्पीड में। तो शुरू में जो रूह की जो स्पीड है वो कीड़ी की मिसाल पर है। फिर जाके बंदर की मिसाल। बंदर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखा देखी करता है। फिर कहीं जाके वो इंसान के मकाम पर पहुंचता है। तो पहले मिनरल सोल का मकाम, वेजिटेटिव सोल का मकाम, एनिमल सोल का मकाम, और इसके बाद रैशनल सोल, स्पीकिंग सोल, ह्यूमन सोल का मकाम आता है। तो ये रूह के दर्जात हैं जो एक एक करके डेवलप होते हैं। तो फिजिकली जब हमने मिसाल ली तो बच्चे की जो हालत थी वो फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जब रूह की भी बात करते हैं तो एक बच्चा, अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, माँ बाप जो भी सिखाते हैं, बेटा है जिंदा बोलो, बच्चे ने है जिंदा बोल दिया। जो माँ बाप ने सिखाया, समझा दिया, बच्चा वो कर रहा है। देखा देखी या माँ बाप ने जो बोला वो सुन के कर रहा है। एक दूसरे फरमान में हाजरी इमाम मौला फरमाते हैं, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दो। Teach them about your religion. If you don't do that, they will only follow physical religion. Physical religion, ये क्या बात हुई कि फर्क है रिलीजन में? फिजिकल रिलीजन और स्पिरिचुअल रिलीजन है यार, क्या बात हो रही, क्या इमाम हमें समझा रहे हैं? तो मौला का ये फरमान हमें ये बात समझाता है कि जब बच्चा माँ बाप को देख के देखा देखी जिस मजहब को वो पालता है उसको जिस्मानी दीन कहते हैं। और इमाम ये भी फरमाते हैं कि सुबह शाम अगर जमात खाने आते हैं और दुआ गिनान करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? क्यों? कि उस फेथ का जो मकाम है वो ब्लाइंड फेथ के लेवल पर है। यानी कि इमाम जो मिसाल देते हैं वो ये कि जो बंदर की मिसाल है, बंदर का क्या मकाम है? मंकी सी मंकी डू। देखा देखी मजहब को करना, समझे बगैर करना, ऐसा है कि जैसे हमारा जो रूह का हाल है वो बंदर के मकाम पर है। हमारे रूह का जो हाल है वो बंदर के मकाम पर है। बंदर के आगे जो है इंसान का मकाम है। इंसान और बंदर में फर्क क्या है? इंसान के अंदर अकल है, इंटेलेक्ट की वजह से ही इंसान अशरफुल मखलूकात, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह इंसान है। जब कोई भाई या बहन जमात के अंदर सवाल करता है, मैं दुआ क्यों पढ़ूं, मैं है जिंदा क्यों बोलूं,
ठीक है, बचपन से माँ बाप ने सिखाया, लेकिन मुझे क्यों बोलना है? बच्चे जब तक ये सवाल नहीं करते हैं तब तक वो जवाब को नहीं पाते हैं। कुछ लोग देखा देखी में ही खुश होते हैं, उसी को पालते रहते हैं। इमाम का ये फरमान है कि देखा देखी में जो भी मजहब को पालता है वो जिस्मानी दीन को फॉलो करता है। और इमाम उसी फरमान में फरमाते हैं, कलाम मुबीन में ही ये फरमान है कि जब अगर बच्चे जिस्मानी दीन को ही पालेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो मजहब को छोड़कर चले जाएंगे। क्यों छोड़कर चले जाएंगे? क्योंकि उन्होंने कभी भी अकल से अपने मजहब को नहीं समझा। In today's time, in today's world, everything is based on intellect. And if we don't have answers to give to our children, why do we do what we do? And when they will not get logical answer, what will happen to them? What has happened today actually? Do we see our youngsters in Jamaat Khana? Not as frequently as our elders are going to Jamaat Khana. What is the reason? इसकी वजह यही है कि हमारे बच्चों ने जब हमसे सवाल किए, हमने लॉजिकल जवाब नहीं दिए। और हमारे बच्चे, इस जमाने के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अकल को समझते हैं, अकल से हर बात को समझना चाहते हैं। जब उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है तो उनके दिमाग में बात नहीं बैठती है। और इमाम ने ये फरामीन हमसे 100 साल से ज्यादा अरसे पहले इमाम ने ये फरामीन करके हमें समझाया कि भाई बच्चों को दीन की तालीम दो, वरना जिस्मानी दीन उनके दिल में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जब इमाम रूमी की मिसाल देके फरमाते हैं तो मौला एक्चुअली रूह के जो हालत है, रूह के जो दर्जात हैं, उसके बारे में बताते हैं। जब एक बच्चा दुनिया में आता है, उसकी जो रूह की हालत होती है वो पत्थर की जैसी होती है। इसके बाद वो जमात खाने जाता है तो कुछ सीखता है, चूंटी की तरह चलता है, फिर वो बंदर की मानंद हो जाता है, देखा देखी सब कुछ करता है, देखा देखी माँ बाप के जो माँ बाप कहते हैं, सिखाते हैं, दुआ भी पढ़ा देता है, तस्बीह भी कर लेता है, गिनान भी गा लेता है, समझ उसके कुछ नहीं आई। जब वो ग्रो होके, समझदार होके सवाल करता है और सवाल के जवाबात को पाता है, तभी वो इंसान के दर्जे पे आके अपने मजहब की तालीम को लेता है। अब अगर ये बच्चा जिसको अक्ल से हर बात समझाई गई है, इल्म से समझाई गई है, अब वो सवाल करता है कि अब मुझे समझ में आता है कि मेरे पास दो रास्ते हैं। मुझे इंसान पैदा हुआ हूं, इंसान से नीचे जाना है, जानवर की हालत में जाना है, या इंसान से फरिश्ते की हालत में जाना है। तो ये सवाल उस वक्त आता है जब इल्म की समझ हो। अगर इल्म की समझ नहीं होती है तो जमात के अंदर हम देखते हैं, जमात आती है, ब्लाइंड फेथ के थ्रू सब फॉलो होता है, हर रिचुअल होता है, एंड देन जमात चली जाती है, एंड दैट्स इट। जमात खाने के वक्त जमात खाना, इसके बाद हम दुनिया में बिजी हैं। फेथ जो है वो कुछ घंटों का है जिसको फॉलो किया जाता है, इसके बाद हमें कुछ मालूम ही नहीं कि हमारा मजहब क्या है और उसको समझना या उस पर अमल करना क्या माने रखता है, कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। तो इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। एक हद तक बच्चों के लिए ब्लाइंड फेथ मस्ट है, क्योंकि अगर ब्लाइंड फेथ नहीं होगा तो कल को वो सवाल करके आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो बुनियाद डालनी जरूरी होती है, ब्लाइंड फेथ देना जरूरी होता है यंग एज में। लेकिन एक उम्र के बाद जब बच्चा 10 साल 12 साल, तो इल्म की आला समझ बच्चों को देनी बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आज इस उम्र में आके इल्म की समझ को लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें अपने आप को सवाल करना चाहिए, मेरी रूह की इस वक्त क्या हालत है? क्या मैं पत्थर के मकाम पर हूं, या कुछ ग्रोथ हो रही है, कुछ तरक्की हो रही, कीड़ी की रफ्तार पर हो रही है, कि घोड़े की तरह हम तेज चल रहे हैं? कुरान के अंदर घोड़े का जिक्र है कि उसको सुबह के वक्त घोड़ा जो वो ऐसा दौड़ता है, भागता है, सरपट भागता है, वो भी एक रफ्तार है। तो हमारी जो रफ्तार है वो कीड़ी की जैसी है या घोड़े की जैसी है? फिर अगर जब हम मजहब को पालते हैं तो वो देखा देखी हम कर रहे हैं कि हमारे दिल के अंदर भी कुछ एहसास होता है? क्या मतलब इसका? कि दुआ के वक्त सब आंखें बंद किए हुए तो हमने भी आंखें बंद की, सबने हाथ उठाए तो हमने भी हाथ उठाए। अंदर हम कहाँ हैं? घर के अंदर हैं कि जॉब पर बैठे हैं, या घर के अंदर कुछ खाना पकाने का प्लान कर रहे हैं? कहाँ है हमारा दिल?
So in other words, what I'm saying that when we are following our religion in Jamaat Khana, and when we are following the blind faith, meaning people are saying dua, so we are saying dua, eyes are closed, but where is the heart? The moment who has the understanding of dua, higher understanding of the religion, they will be connecting to every word which is being said in dua. Otherwise, everybody's eyes are closed, my eyes are closed, hands are being raised, and sajda, so sajda. But in reality, heart is probably at home cooking food or doing something else at work. So that is blind faith. जो मोमिन इल्म से अपने मजहब की तालीम को लेता है, वो मोमिन जो है कोई भी क्रिया करता है उसमें उसका दिल होता है और वो तरक्की करता है, उसमें वो आगे बढ़ता है, उसका दिल जो है वो इमाम के साथ होता है, चाहे वो दुआ पढ़े, चाहे वो गिनान पढ़े या फरमान सुने, उसका दिल उसके अंदर होता है। ऐसा मोमिन सालिक इंसान से फरिश्ते की दर्जे की तरफ वो चलता है, इंसान पे रुकता नहीं है, क्योंकि उसने इल्म हासिल किया, इल्म से उसकी समझ आती गई, अब वो फरिश्ता बनने के रास्ते पे चला है। और इमाम फरमाते हैं कि रूमी की मिसाल दे के, मलाइक बनूंगा, वहां से कहां जाऊंगा, इससे भी ऊपर जाऊंगा। Here we need to ask this question. Okay, we had heard about angels. There are ranks above the angels too. What do we know about angels? Okay, there are 4 archangels. That is it. Jibrail, Mikael, Israel, Israfil. Is that all? Are we able to get to that rank, or there are more angels? And what is after the angels? We thought there is Allah, then there are angels, and then there is humanity. Now, what is Hazrat Imam saying here, that we need to go, there is a path above the angels? That means that there are so many ranks which we are probably unaware of. यहाँ पे जो हमें समझ दी जा रही है वो दर्जात की, हुदूद दीन की समझ दी जा रही है कि हमारा मजहब जो है वो दर्जात में है, हमें दर्जात को समझना होगा। इमाम ने बहुत ही आसान तरीके से शुरू के दर्जात हमें समझा दिए कि पत्थर है, दरख्त है, कीड़ी है, फिर बंदर है और फिर फरिश्ता। लेकिन फरिश्ते पे रुकना नहीं है, फरिश्ते से भी ऊपर जाना है। तो जब इतने ऊपर की इमाम बात करते हैं, ये तो बहुत बड़े राज हो गए इमाम के। इन राजों को पाने वाला वो मोमिन सालिक होगा जो अक्ल से इल्म को परवान चढ़ाएगा, इल्म से अकल को परवान चढ़ाएगा, अपनी अकल को शार्प करेगा। और आपको बहुत हैरत होगी कि जब हम रूह के स्टेजेस की बात करते हैं तो कुरान के अंदर भी रूह के स्टेजेस की बात की हुई है, और हमारे दाइयों ने, हमारे फिदाइयों ने इन तमाम स्टेजेस को समझाया भी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे दाई हमीदुद्दीन किरमानी, he talks about these stages of the soul from Quran actually. Chapter 23, Surah Al-Mu'minun, chapter 23, verse 12, 13 and 14. It talks about 7 दर्जा। तो कुरान में जो है रूह के दर्जात जो है वो 7 लेवल पे बताए गए हैं, और उन दर्जात को हमीदुद्दीन किरमानी ने समझाया है, सिजिस्तानी ने समझाया है, अलग अलग तरीकों से हमें तावीलात देकर हमें अंडरस्टैंडिंग दी गई है। एक मोमिन सालिक जब इस फरमान को पढ़ता है तो वो इसमें जो है वो गोता खाता है, dive deep into it to understand what are the दर्जा। जब इसी दर्जात के फरमान को लेके जब हम कुरान में अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करते हैं तो कुरान के अंदर जो अल्फाज हैं वो ये कि तुमको जो है मिट्टी से पैदा किया गया। यहाँ इमाम ने पत्थर की बात की, फिर मिट्टी से बात करके जो है नुत्फे की बात की जाती है। नुत्फा यानी कि सेल के लेवल पे, स्पर्म के लेवल पे और ओवम के लेवल पे नुत्फा, यानी कि जब माँ और बाप का जब सेल, स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, छोटा सा आंखों से नजर भी नहीं आता है, उस लेवल की बात है। उन तमाम दर्जात को जो कुरान में दिए गए हैं कि पहले मिट्टी था, फिर तू जो है वो नुत्फे पे आया, फिर एक गोश्त का लोथड़ा यानी कि क्लॉट, और उसके बाद जो है वो लम्प, फिर तेरे
हड्डियां आई, फिर तेरा गोश्त बना, और फिर तेरी खल के आखिर यानी कि आखिरत की तेरी जो है वो पैदाइश हुई। कितनी अजीब व गरीब बात है। अगर हम इन चीजों को समझे दुनियावी लिहाज से, कि जब एक बच्चा माँ के पेट में होता है, सेल के लेवल पे, फिर क्लॉट के लेवल पे, फीटस के लेवल पे बोन्स बनते हैं, गोश्त बनते हैं। इसके बाद कुरान में कहा जाता है कि भाई आखिरत का उसका खल के आखिर बनाया जाता है। बात बनती नहीं है, जमती नहीं है। जिस तरह से हमें इस फरमान में समझाया गया कि भाई फरिश्ता बन के उससे भी आगे जाना है, फरिश्ते के तो आगे खुदा है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, हमें मौला क्या समझा रहे हैं? और कुरान में इसी मिसाल को लेते हुए बात की गई कि खल के आखिर, आखिरत की खलकत मतलब क्या? हाँ, हम जानते हैं, इल्म में अब हमें समझ में आता है कि हम उस रूह से जुदा होकर आए हैं, सिंगल सोल से यहाँ आए हैं, और हमें अपना सफर वापस उस रूह के साथ एक हो जाना है। हम इमाम की रूह से जुदा होकर आए हैं और हमें इमाम में दोबारा मिल जाना है। लेकिन जब इमाम यहाँ फरमाते हैं कि मलाइक से ऊपर भी कोई दर्जा है, तो वो क्या दर्जा है? मलाइक के ऊपर तो खुदा है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? क्या इंसान के अंदर ये काबिलियत है कि वो खुदा बन जाए? यहाँ सवाल पैदा होता है। इमाम यहाँ क्या फरमा रहे हैं? जो मोमिन सालिक इल्म से इन चीजों को समझेगा, वो कियामत के कॉन्सेप्ट को, आखिरत के कॉन्सेप्ट को, मलाइक के ऊपर क्या दर्जात हैं उसको समझेगा। आपको मालूम है, दुनिया के अंदर अगर किसी बच्चे को ये समझाया जाए कि भाई अगर आप जो है ना इस स्कूल में, इस ग्रेड में अगर पास होंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, आपने एग्जाम को अच्छे ग्रेड से पास किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बच्चा बहुत मेहनत करता है क्योंकि उसको ये खुशी होती है, ये लालच होती है कि उसको ये इनाम मिले, और वो इनाम की लालच में जो है वो अर्लियर ग्रेड्स को करते जाता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब अडल्ट हो जाता है, nobody tells him that you have to go to university, you have to get this degree, because he is self motivated. Why? Because he has learnt intellectually कि भाई क्या रीजन है मुझे यूनिवर्सिटी में जाने का, मुझे क्या फायदा होगा। जब कोई मोमिन, जमाती मोमिन, मोमिन सालिक बन जाता है, तो उसको लालच की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको अपने इनाम का पता होता है, उसके इनाम का उसको अंदाजा होता है। जब इल्म से वो इन इनामात को पहचान लेता है, तो वो इमाम के इश्क में ये काम करता है। क्या काम करता है? आगे बढ़ने का। इमाम ने जो दर्जात समझाए हैं, उन तमाम दर्जात को पूरा करके और आगे और आगे और आगे बढ़ना। मोमिन आगे बढ़ता है, लेकिन मोमिन की जो हालत होती है दुनिया में, कैसी होती है? आजिजी की। क्यों? इमाम ने फरमाया कि मोमिन हमेशा अपने आप को पहली सीढ़ी पे देखता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आप पहली सीढ़ी पे, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि अगर हम दुनिया में ही देखते हैं कि जब लोग डिग्रीज मिल जाती हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर ये बात आ जाए, आई डिड दिस। मोमिन सालिक कभी भी नहीं कहता है कि आई वर्क हार्ड, इट इज नॉट ड्यू टू मी, इट इज ड्यू टू माई मौलाज मर्सी। क्यों? गुरूर जो है वो बहुत खतरनाक है। तो दर्जात की जब हम स्टडी करते हैं, दर्जात की जब समझ लेते हैं और फरिश्ते की स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि अज़ाज़िल भी फरिश्ता था और उसने बहुत इल्म हासिल किया था। कितनी किताबें? 36 करोड़ किताबा पढ़िया पर भीतर भेद ना पाया। इमेजिन 3600,000 बुक्स, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अज़ाज़िल इतना बड़ा फरिश्ता था। फरिश्ते के मकाम पर पहुंच के भी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। क्या इम्तिहान? आजिजी का इम्तिहान। तो मोमिन सालिक को इमाम ये समझ देते हैं कि तुम्हारे लिए आगे बढ़ने के लिए रास्ते तमाम खुले हैं, लेकिन मोमिन हमेशा अपने आप को पहली सीढ़ी पर देखता है, ताकि वो कभी भी दर्जात की सीढ़ी से नीचे ना उतर जाए। सीढ़ियां अगर ऊपर जाती हैं तो सीढ़ियां नीचे भी तो आती हैं। तो मोमिन सालिक जो है वो अपने कदम जमा के वो ऊपर चढ़ने की बात करता है, नीचे उतरने से वो बहुत ख्याल रखता है। जैसे इमाम फरमाते ना कि चौकस होशियारी से चलता है वो, कि कहीं वो नीचे ना उतर जाए।
تو یہاں پہ امام جو ہمیں رومی کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں وہ یہ کہ درجات ہیں، سیڑھیاں ہیں جس میں ہمیں اوپر چڑھنا ہے۔ ایک مومن صالح جو ہے وہ ایک مقام پر پہنچ کے، ایک سیڑھی کے اوپر پہنچ کے وہ خوش نہیں ہوتا ہے۔ مومن کی خوشی یہ ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھتا جائے، وہ رکنے میں راضی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ گنجائش ہے علم کے حوالے سے سمجھنے کی کہ درجات کیا ہیں۔ اور ایک کانسیپٹ جو ہے درجات کا ہم سیکھتے ہیں جو کہ حدود دین کا کانسیپٹ ہے، جس پہ کلاسز ہوئی ہیں۔ جن ساتھیوں کو حدود دین کا علم نہیں ہے وہ نوین صاحبہ سے لیکچرز مانگ سکتے ہیں اور حدود دین کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں۔ حدود دین کا کانسیپٹ ہمیں سمجھاتا ہے کہ کس طرح سے ایک مومن صالح بن جاتا ہے۔ جنرل ٹرم ہے مومن، تمام مومن ہے، لیکن وہ مومن صالح ہے جو سیڑھی پر کھڑا ہے، کیونکہ سیڑھیاں اوپر جاتے ہیں۔ اگر آپ سیڑھی پہ بھی نہیں ہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں تم خیال کرو کہ ہم فنا ہو جائیں۔ ابھی تو مولا آپ نے فرمایا کہ ہمیں اوپر چڑھنا ہے، سیڑھی پہ چڑھنا ہے، ابھی مولا فرماتے فنا ہو جائیں، یہ کیا بات ہے؟ ضرور اس میں اور اس میں کوئی لنک ہے، اس لیے تو امام فرما رہے ہیں اگر کوئی مومن سیڑھی پہ چڑھتا ہے، سیڑھی درجات کو سمجھتا ہے، تو اسے اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جیسے جیسے وہ سیڑھی پہ چڑھتا ہے اس کی میں ختم ہوتی جاتی ہے، آئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ کیا؟ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیتا ہے، وہ فنائیت پہ یقین کرتا ہے، فنا ختم ہو جانا۔ جیسے کلام مولا میں ایک پارٹ ہے نا، میں اور تو کی دو ہی چھوڑ سب ایک دیکھ، ایسا فنا ہو اس میں جب تو نہیں تب وہ صحیح۔ یعنی کہ اپنے آپ کو کچھ نہ ماننا، اپنے آپ کو فنا کرنا، یہ سمجھ جو ہے مومن جو درجات کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے اسے سمجھ آتی ہے کہ فنائیت بھی ایک مقام ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں، امید دیتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جو کوئی چاہے اور کوشش کرے وہ وہاں پہنچ سکتا ہے۔ کہاں پہنچ سکتا ہے؟ فنائیت۔ چاہے، چاہت کب ہوتی ہے کسی چیز کی؟ اگر کسی نے، امام فرماتے ایک فرمان میں، اگر کسی نے مینگو نہیں کھایا، مینگو از دی کنگ آف دا فروٹ، کسی نے اگر مینگو نہیں کھایا ہے تو وہ پیاز کی تعریف کرے گا۔ انین از اے ویجیٹیبل، رائٹ، ہم کھانا پکاتے ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے انین کا مینگو سے، دیر از نو کمپیریزن۔ لیکن امام یہ مثال فرمان میں دیتے ہیں، کیوں؟ کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے اگر ہم نے مینگو کھایا ہے اور ہم نے انین کھائی اور ہمیں اس کی ٹیسٹ کا پتا ہے، تو مذہب کے اندر جو ترقی ہے، جو خوشی ہے، جو مزہ ہے امام کے عشق کا، وہ مینگو کی مثال پر ہے۔ لیکن جو شخص اس خوشی کو نہیں پاتا ہے، نہیں جانتا ہے، وہ انین کی تعریف کرے گا، دنیا کی تعریف کرے گا، دنیا میں خوش رہے گا، اس کو کیا معلوم مینگو کا ٹیسٹ کیا ہے؟ تو اتنا بڑا فرق ہے، کہاں مینگو اور کہاں انین، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ یہ ہے دین اور دنیا کے ٹیسٹ کا فرق۔ امام فرماتے ہیں کہ جو چاہے، اب چاہت کہاں سے آتی ہے؟ کوئی ہمارے پاس آئے اور کہے کہ بھئی آپ نے مینگو کھایا ہے، مینگو جو ہے وہ کنگ آف دا فروٹ ہے، اس کا اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی ایسی خوشبو ہوتی ہے، اس کے ایسے کلرز ہوتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں ایک ڈسکرپشن، امیجنیشن بنتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، and then we have this desire, oh I wish I can eat this food۔ لیکن اگر اس شخص نے کبھی کوئی ایسی ڈسکشن میں حصہ ہی نہیں لیا ہے، کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ مینگو ایک فروٹ بھی ہے، کیا اس کے دل میں ایک خواہش آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہاں پہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مومن علم کی محفل میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، علم کو حاصل ہی نہیں کرتا ہے، تو اس کے دل میں کبھی خواہش بھی نہیں آتی ہے کہ آگے بڑھنا ہے۔ منکی سے منکی ڈو میں وہ راضی ہے، دیکھا دیکھی جو کر رہا ہے اللہ اللہ خیر صلاح۔ علم کی محفل میں جو آئے گا، علم سے جو امام کی تعریفوں کو سنے گا، تو اس کے اندر بھی خواہش آئے گی، مجھے بھی یہ چاہیے، مجھے بھی ایسا عشق چاہیے، مجھے بھی مولا کی جو انعامات ہے وہ چاہیے، خواہش ہوگی۔ ایمان جو ہے کیا کہتا ہے، ہمیں دعا کیا ملتی ہے؟
मौला नेक मुरादों पूरी करे। नेक मुराद, ख्वाहिश, हमारी जो नेक नीयत है, जो मुराद है, हमारी जो ख्वाहिश है, उसको मौला पूरी करे। जो चाहेगा और सेकंड स्टेप कोशिश करेगा। तो एक लेवल ये होता है, इल्म क्लास में आए, 1 घंटा अटेंड किया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, मौला का नाम लिया, मौला की तारीफ, इसके बाद बिजी हो गए अपनी दुनिया में। ये भी एक लेवल है। दूसरा एक लेवल ये होगा, जिसने जो इल्म को सुना, कुछ नोट्स लिए, इसके बाद खुद नोट्स खोले, कुछ स्टडी किया और गौर किया, रिफ्लेक्ट किया, ख्याल किया कि हाउ कैन आई गेट दिस, मैं क्या ऐसा करूं, क्या कोशिश करूं कि मैं भी तो आगे बढ़ूं। ये एक दूसरा लेवल आया। जो चाहे और कोशिश करे वो वहां पहुंच सकता है। जो शख्स कोशिश करना शुरू कर देता है, श्योरली वो मोमिन सालिक है, क्योंकि उसने काम करना शुरू कर दिया। उसके अंदर ये बात की समझ आ गई कि मुझे बंदर तक नहीं रहना है, मैं इंसान हूं भाई, मेरे पास अकल है, अकल से मुझे समझ में आता है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, फरिश्ता बन सकता हूँ, तो व्हाई नॉट, मुझे बनना चाहिए। उसने ऐसा सोचना शुरू किया, वो मोमिन सालिक बन गया, उसने अमल करना शुरू किया, एक तरक्की के बाद दूसरी तरक्की, दूसरी तरक्की के बाद तीसरी तरक्की, वो आगे बढ़ना शुरू कर दिया। फिर इमाम हमें समझाते हैं कि हम क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जमात के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो इल्म को हासिल नहीं करते हैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश नहीं रखते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्यों हमारा जो है ध्यान हमारी इबादत में नहीं लगता है, या हमें जो खुशी दुनिया में मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। दुनिया में जरा सी तकलीफ आई, हम इतना परेशान हो जाते हैं कि मजहब को भूल जाते हैं, दुनिया में बिजी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इमाम समझा रहे हैं हमें, लेकिन तुम्हारे गुनाह तुम्हें पहुंचने नहीं देते हैं। तो यहाँ अगेन इमाम हमें समझा रहे हैं कि फाइंड आउट कि कैसे गुनाह क्या चीज है और हम इंडिविजुअली कैसे गुनाहों में इन्वॉल्व हैं। जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि हम कैसे गुनाह कर रहे हैं, हम अपनी ख्वाहिश पे अमल नहीं कर सकते हैं। इन गुनाहों ने तुम्हें कैद में बंद रखा है, दुनिया के गुनाहों ने तुम्हें कैद में डाला हुआ है। तो यहाँ पे अगेन गुनाहों के भी दर्जात हैं, लिसन टू मी केयरफुली, गुनाहों के अंदर भी दर्जात हैं कि गुनाह हमें आगे पहुंचने नहीं देते हैं, गुनाहों ने हमें कैद खाना, एक केज में रखा हुआ है। फिर दुनिया के गुनाहों ने तुम्हें कैद खाने में डाला हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस दर्जे पे है, ऐसे गुनाह भी हो सकते हैं। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि शैतान जो है ना, उसने ये वादा किया है कि वो सिरात मुस्तकीम पे बैठा है, वो सिरात मुस्तकीम पे बैठा है मोमिनों को बाजी देने के लिए। हमारी नफ्स जो है वो हमारे साथ ही है ना, कि हमको जो है बहकाए। तो नफ्स जो है वो हमें हमारे लेवल पे आके जहां भी हम खड़े हैं वो हमें बाजियां देते हैं। इल्म से हम पहचान सकते हैं कि गुनाह किस किस्म के होते हैं और हमें गुनाहों से कैसे बचना है। और जब जब गुनाह की बात आती है तो आई डू लाइक टू रेफर टू कलाम मौला। कलाम मौला में मौला अली ने जो गुनाहों की समझ दी है वो बहुत ही आलीशान है। अगर किसी भी साथी के अंदर ये ख्वाहिश हो कि गुनाह को समझे, कलाम मौला को पढ़े। कलाम मौला के अंदर अगर हम देखते हैं, मौला ने पहला बयान जो है वो सच्चाई का बयान है। सच्चाई मतलब क्या? झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। बरादरी के बयान है, मीनिंग भाईचारा, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड की बात हो रही है। अगर दिल में कीना बुग्ज है तो सिस्टरहुड और ब्रदरहुड तो नहीं होगा। फजीलत अदब के बयान में, अदब रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्टफुल है, बेअदबी है, ये भी गुनाह है। हमारा इखलाक, और एथिक्स, और एटीट्यूड, ये तमाम चीजें जो है वो अदब में आ जाती है। फिर सखावत की तारीफ में, जो सखी नहीं है, मौला शाह करीम का नाम जो है सखी, जनरस, जो जनरस नहीं है वो क्या है? कंजूस है, गुनाह में है। लालच के बयान में, दास्ताने मन के बयान, यानी जो मन की बात मानता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे है, वो गुनाह में है। यानी कि अगर आप सारे
کلام مولا کے اندر جو بیانات ہیں، کلام مولا کے اندر جو جو چیپٹرز ہیں، ہر چیپٹر کے اندر گناہ کی بہت خوبصورتی سے سمجھ دی گئی ہے. تو اگر گناہ کو سمجھنا ہے، ایک چیک لسٹ بنائیں. لاسٹ کلاس میں کوئی پوچھ رہا تھا کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم آگے بڑھیں. کلام مولا کے اندر اپنے آپ کو جو ہے سامنے رکھیں اور جو مولا بیان کرتے ہیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ بھئی خود کے اندر کیسے گناہ کرنے کی ہیبٹس ہیں. چیک لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ دن کے اندر ہم کہاں کتنے گناہ کرتے ہیں. رات کو جب پلس چیک کرنے کا ٹائم ہے، امام کے فرمان کے مطابق فرمان برداری ہے پلس چیک کرنا. چیک کریں اور دیکھیں کہ کیسے گناہ کیے. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے گناہ تمہیں پہنچنے نہیں دیتے. تو یہاں پہ اب یہ مومن سالک ہے جس نے علم کو لیا ہے، اس نے علم سے اس کو آگے بڑھنا ہے، اس کے اندر خواہش بھی آئی، اس نے علم کی کتابوں کو بھی اٹھایا، فرمان بھی کھولیا، قرآن بھی کھولیا، لیکن اندر جو خوشی آنی چاہیے، جو عشق پیدا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. فوراً سے علم سے سمجھ میں آئے گا کہ پلس چیکنگ کے اندر کمزوری ہے، کوتاہی ہے، کمی ہے. برابر پلس چیک کرنا ہے اور اسٹرکٹلی چیک کرنا ہے اپنے آپ کے کون سے گناہ کیے. کیونکہ نفس کے بارے میں پیر نے کیا سمجھایا؟ نفس تو مہا بڑونت کہیں، نفس کو تو چابک سے مارنا ہے، ہنٹر سے مارنا ہے. سختی سے جو ہے نا اس کا معائنہ کرنا ہے، پلس چیک کرنی ہے کہ نفس تو نے مجھے کیسے کیسے تنگ کیا ہے، کیسے کیسے گناہوں میں رکھا ہے. جب ہم گناہوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ نفس کی بات نیکسٹ ڈے نہیں ماننی، نفس کو مارنا ہے، تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی نفس کو مارنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں نفس کو مارنے کے لیے 3 اصول ہیں: کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. یہ 3 چیزیں مومن صالح برابر اپنی پریکٹس میں رکھتا ہے: کم بولنا، کم کھانا، کم سونا. یہ جب 3 چیزیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری نفس جو ہے وہ کمزور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ اس کو کھانا نہیں ملتا ہے. پیٹ بھر کے جب کھانا کھائے گا تو شیطانی آتی ہے. پیٹ بھر کے جو شخص سوئے گا وہ بھیبان خرگوش کی نیند سنا، عبادت کے وقت کو وہ نہیں پا سکتا ہے. کم بولنا، بے دھیانی میں جتنا بولتے ہیں اتنے گناہ ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 اصول ہیں اگر ہمیں اپنی نفس کو مارنا ہے. اور پھر انشاءاللہ یہاں پہ روکتے ہیں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ قید کھانا اور گناہ، اس میں جو ہے ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے. اتنی جو بات کی ہے اس میں سے سمرائز کر کے جو نتیجہ عکس کرنا ہے وہ یہ: ہمارا مذہب جو ہے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ روح کے درجات ہیں، ترقی کے لیے درجات ہیں. جب تک ہم درجات کو نہیں سمجھیں گے ہمیں معلوم نہیں چلے گا کہ آم کا ٹیسٹ جو ہے کیا ہے اور انین کا ٹیسٹ کیا ہے. ہم انین کھاتے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں، ہم تو بہت آگے بڑھے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے علم سے پہچاننا کہ آم کا ٹیسٹ کیا ہے. جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے پھر خواہش کریں گے اور پھر عمل کریں گے. عمل میں جو پہلی بات ہے عمل کرنا، علم کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے بعد فرمان برداری. کیا ہے فرمان برداری؟ آج کے لیسن کے حوالے سے ایوری نائٹ کو پلس چیک کرنا. جب تک ہم اپنے اعمال کی پاکیزگی نہیں کریں گے، جو ہم محنت کر رہے ہیں اور جو محنت کا ہمیں بدلہ ملنا چاہیے. امام کا جو حساب کتاب ہے 1 کا سوالات، اگر ہم 1 کا سوالات نتیجہ نہیں دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں ابھی بھی بہت زیادہ ناپاکیزگی ہے. اعمال کو پاک کرنے کے لیے پلس چیک کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو پلس کو چیک کرنے کی ہیبٹ ایوری نائٹ کی ہونی چاہیے. اور پھر پتا چلے کہ نفس نے اگر ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. غلام کتنی عجیب بات ہے نا. امام نے یہ مثال دی کہ جب کوئی گھوڑا چلتا ہے، ہارس کارٹ کو اگر ہم چلاتے ہیں تو جو انسان ہے اس نے گھوڑے کی جو ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، رین کو، نہ کہ گھوڑا انسان پہ سوار ہے. جب تک ہم پلس چیک نہیں کرتے ہیں ہماری وہ حالت ہے، ایک امیجنیشن ہونا چاہیے کہ گھوڑا ہم پر سوار اور ہم کو کہتا ہے چلو. تو ہم گھوڑے یا انسان ہیں؟ ہم جانور نہیں، ہم تو انسان ہیں. کیسے ہمارا نفس ہم پہ جو ہے وہ سرداری کرے؟ ہم آقا کے مثال پہ ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس عقل ہے. ہماری نفس ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے، نہ کہ ہم نفس کے کنٹرول میں ہونے چاہیے. تو یہ بہت بنیادی
प्रैक्टिस है, रियाजत है कि हम पल्स चेक करें और आइडेंटिफाई करें कि कहाँ हमारे गुनाह हो रहे हैं और उसमें डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट लाए। इमाम से तोबो बहुत माफी मांगे। जिक्र है बहुत ही खूबसूरत, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि मैंने खुद मौला मैंने अपनी रूह पे इतना जुल्म किया है मौला, तू सुभान है, तू पाक है, मुझे मेरे जुल्म से बचा ले मौला। क्योंकि नफ्स जो है वो हमारा अपना खुद का हिस्सा है, नफ्स को निकाल नहीं सकते हैं। नफ्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म करना, नफ्स से हमारा जो है वो नफ्स से लवामा में बदलना है। कोई और आके तो नहीं बदलेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास फ्री विल है, हमारी ये चॉइस है कि हमको जानवर के रास्ते पे चलना है कि फरिश्ता बनना है और उससे भी आगे बढ़ना है। इमाम ने तो रास्ता खुला रखा है, दावत भी दे दी है, हर चीज जो इमाम को देनी चाहिए। इमाम रहमान और रहीम है, कोई लिमिटेशन हमारे लिए नहीं रखी है। अगर लिमिटेशन है वो हमारी अपनी है, हमने खुद क्रिएट की हुई है। तो आई होप कि हम यहाँ पे जो मग्स है उसको फोकस करेंगे और स्पेशली जो हमने समरी की उसको बहुत गौर से अपने ऊपर अप्लाई करके इस पे अमल करेंगे, ताकि हम इस सफर में एवरी डे आगे बढ़े। मकसद ये है आगे बढ़ना, इतनी हमारी उम्रें हो गई हैं, अब हमें आगे बढ़ना है, यहीं पे रुके नहीं रहना है। इमाम से तौफीक, ताईद, हिम्मत और यारी को तलब करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम अपने अंदर एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकंड इम्प्रूवमेंट, बेहतरी लाएंगे और तरक्की पाएंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अगर यहाँ कोई सवाल है तो साथी कर सकते हैं। Okay, I don't see any questions. I hope all of you are understanding. Very nice, Nimi Saiba. Thank you very much. So nice, so nice. Learn so many new things. Very nice. शुक्र शुक्र मौला आपको। बस क्या बताऊं मौला आपके लिए जो भी दुनिया में जो भी अच्छा काम है सभी आपके लिए करे, बस और क्या बता सकते हो। Thank you. Thank you. Shukr Mawla. All right, friends. If we have no questions. Thank you, Niamat Ben. Lot of homework to do now. Thank you, viewers. You know. I like that. Yes, we do need to do homework. Yes, ma'am. Shukr Mawla. Shukran, Mola. It was an eye opener. Mola, मैं पूरी करे. Shukr Mawla. Shukr Mawla. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad. Yali Madad.